Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So, again, we are going to start with the marketing concepts today, the remaining concepts of marketing department. As you already know, the main purpose of marketing department, which is to establish the relationship between the businesses and the consumer. It is the responsibility of marketing department to identify the particular needs and wants and work on the particular needs and wants, produce the goods and services according to these needs and wants to satisfy a customer. And the marketing department help the business organizations to achieve the objective of profit maximization. So today we will start with the concept of market. What is meant by a market? We have two definitions here to define the concept of market, one for the business and the second would be taken from the economic subject. The definition of market is actually the market means the number of target audience, the number of goods and the number of particular goods or services is made up of the total number of customers or the potential customer as well as the sellers for the particular product. It can be calculated by the total number of sales by all suppliers to a particular good or services. Market means the number of target audience which are used to buy the product offered by a particular brand or offered by a particular industry. फॉर एग्जांपल जैसे आप कह सकते हैं एक एक टाउन में रहने वाले कितने चाइल्ड्स हैं जो आइसक्रीम खाते हैं वो जितने भी चाइल्ड्स हैं जो आइसक्रीम की डिमांड रखते हैं आइसक्रीम को रिक्वायर करते हैं एंड दे हैव आल्सो द अफोर्डेबिलिटी टू बाय दीज प्रोडक्ट मार्केट की बिल्कुल वही डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स में डिज़ायर एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों को डिस्कस किया जाता है सो नंबर ऑफ कस्टमर्स हु आर विलिंग टू बाय एंड हैव अफोर्डेबिलिटी टू बाय द प्रोडक्ट बिलोंग्स टू द मार्केट इकोनॉमिक्स में जैसे कि इसकी डेफिनेशन एक और भी की जाती है the market is the place or mechanism where buyers and sellers meet to exchange the goods and services engage in exchange जैसे कि एग्जांपल दी जाती है इकोनॉमिक्स में शॉपिंग सेंटर्स की या रिटेल स्टोर्स की एग्जांपल तो दोनों डेफिनेशंस को इस सब्जेक्ट में लिखा जा सकता है बोथ और डेफिनेशंस आर एक्सेप्टेबल इन बिजनेस स्टडीज नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस वाली भी एक्सेप्टेबल है और इट इज़ अ प्लेस जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स जो एक्सचेंज करते हैं ये वाली डेफिनेशन भी एक्सेप्टेबल So further the market has been divided into three types the mass market, the niche market, segmented market. Three types of markets are there according to the business capability, according to the nature of the customers, nature of the audience. Business decide करता है कि वो किस market को according to the competition, the number of competitors available, according to the income of the people, nature, behavior, according to the type of a product, ये business decide करता है कि उसको किस market में जाना है, mass में, niche market में या segmented market. So first of all हम ये देखते हैं what is meant by the mass market का मतलब क्या है. Mass marketing means selling a similar product to the whole community and there is no attempt, there is no need to identify a particular target audience. एक ही प्रोडक्ट आप ऑफर करते हैं होल कम्युनिटी को और इसमें किसी भी कंज्यूमर को किसी भी पर्सन को सेपरेट नहीं किया जाता द businesses that involve in producing the mass products, mass product या mass market एक ही चीज़ के दो नाम हैं
Those businesses who are producing the mass type product, they offer the same goods and services to everywhere, offering the same goods and services to everyone to everywhere. इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल जो दी जाती है, कोका कोला ऑफर की जाती है जो सबके लिए कॉमन है, सब कंट्रीज में इसको ऑफर किया जाता है। सिमिलर प्रोडक्ट इज ऑफर्ड टू एवरीवन। इसमें प्रोडक्ट को वेरिएशन देना या प्रोडक्ट को वेरी करना, अलग अलग प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड टू डिफरेंट कंज्यूमर्स। कॉन्सेप्ट एक दिया जाता है बिजनेस में, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। मार्केट, मैस मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को ऑफर नहीं किया जाएगा। सेलिंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज टू द होल मार्केट and there is no attempt to identify a target group within it and there is no market segmentation। बहुत सारी एग्जांपल इसकी ऐड की गई हैं जिसमें कोका कोला है। हाउस होल्ड जितनी भी घर में आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इसमें सोप है, शैम्पू है, ऑलिव ऑयल है, ग्रॉसरी गुड्स हैं, ये सारी की सारी मैस लेवल पे ऑफर की जाती है। टूथपेस्ट है, ये मैस लेवल पे ऑफर की जाती है। जो भी प्रोडक्ट बल्क में बनाई जाएगी उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैज़ बीन अचीव। सो जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग है, जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर दोज फैक्टर दैट रिड्यूसेस द एवरेज कॉस्ट whenever the business increase its scale of operation। आपकी जो कॉस्ट एडवांटेज है वो मैस मार्केटिंग में बहुत, वो बिजनेसेस जो मैस लेवल पे प्रोडक्ट को बनाते हैं, सेल करते हैं, एवरेज कॉस्ट को उन लो करने में वो सक्सेसफुल रहते हैं। फ्यू रिस्क, mass marketing strategies can organize with the less risk as compared to other strategies। It offers goods and services to the large number of people and can spread, can't spread risk नहीं, can spread risk over a multiple। बहुत सारे लोग मैस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। अगर चंद लोग, ये कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और कुछ लोग फैट्स मोटे हैं, तो वो ये प्लान करते हैं कि वो कोक को कंज्यूम नहीं करेंगे। लेकिन इससे बिजनेस को कोई, क्योंकि इसके बिलियन मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, तो फास्ट मार्केटिंग में अगर कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर ब्रांड को या पर्टिकुलर बिजनेस की प्रोडक्ट को नहीं बाय करना ड्यू टू सर्टेन रीजन, तो बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इवन अगर एक बिजनेस एक कंट्री से भी निकल जाए तो उसके प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। सो मैस मार्केटिंग टेक्निक्स have fewer risk as compared to other। It is not possible to offer differentiated products in mass market। Different products are different, different products for different people is not possible। आपकी कस्टमर की डिमांड को इसमें ऐड नहीं किया जा सकता। इसमें एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होगी जो कि सारे कस्टमर को सिमिलर लेवल की ऑफर की जाएगी। The second strategy would be the niche strategy। niche, यहाँ पे निश का जो वर्ड है वो दो मीनिंग में यूज किया जाता है। अ गैप इन द मार्केट, यूनिकनेस इन द मार्केट। गैप, व्हाट इज मेंट बाय मार्केट गैप? मार्केट गैप ये है कोई भी ऐसी प्रोडक्ट और अ फीचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मोबाइल फ़ोन का कोई ऐसा फीचर जो अभी तक कोई इनोवेट नहीं कर सका, दिस इज एक्टिंग एज अ गैप। वो बिजनेस जो इस फीचर को गेट कर लेगा, इनोवेट कर लेगा, वो उस गैप को यानी उस निश को फिल करने में सक्सेसफुल होगा। तो niche means offering unique product, offering those product in the market which are not previously available। The definition say it involves finding out, exploiting a particular target market, a segment of a target market which is not previously identified by any competitor। एग्जाम्पल जैसे सोनी एक्सपीरिया ने सबसे पहले वाटरप्रूफ मोबाइल फ़ोन पे काम किया और उसने इस गैप को फिल किया। गैप को फिल करना, टोयोटा प्रियस, टोयोटा ने हाइब्रिड कार बनाई, हाइब्रिड का गैप फिल किया। तो जो फर्स्टली उसको इनोवेट करता है
the business is called the initial innovator of a particular product, particular feature. मर्सिडीज ने कुछ फीचर्स को इजाद किया, बुलेट प्रूफ को इजाद किया, इसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को इनोवेट किया। इस तरह iOS एप्पल का एक निश फीचर है, उसने इस गैप को, क्योंकि एंड्रॉयड में कुछ इश्यूज हैं, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए उसने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम iOS, तो निश या गैप को फिल करना मार्केट में कम वक्त में सक्सेसफुल होने का एक बात। कई लोग ये क्वेश्चन, कई बच्चे ये स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है और उसमें शॉर्ट टाइम में किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। द आंसर इज टू ऑफर समथिंग निश। वो निश प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो निश प्राइस भी हो सकती है, आपकी प्रमोशन भी निश हो सकती है और आपकी लोकेशन भी निश हो सकती है। फाइंड समथिंग यूनिक विच इज नॉट offering previously by any other competitor. Advantages: small firms can compete the large firm by finding a certain type of gap in the market, and they are able to develop their status image, and they are able to compete the large scale competitor. कुछ ऐसा स्मॉल फर्म करे जो कि लार्ज फर्म नहीं कर सकती। ये बड़ा एक मुश्किल क्वेश्चन है कि ऐसा क्या होगा जो लार्ज फर्म नहीं कर सकती और स्मॉल फर्म कर सकती। स्मॉल फर्म कस्टमर को पर्सनलाइज सर्विसेज दे सकती है और कस्टमाइज सर्विसेज दे सकती है, which the large firm, it is not possible for a large firm to offer the personal, उसके लाखों कस्टमर्स हैं, वो पर्सनल सर्विसेज को ऑफर करना उसके लिए बहुत मुश्किल। तो स्मॉल फर्म्स के लिए ये ऑप्शन है, ये अपॉर्चुनिटी है कि वो पर्सनलाइज सर्विसेज के थ्रू ऑफर कर सकती है, पर्सनलाइज सर्विसेज, और लार्ज फर्म को compete कर सकती है, और इवन a chance to sell at a high price and able to earn the profitability. High profit margins या profit margins का word use किया जा सकता है। The need of customers can be focused. Reason भी, method भी यही बताया गया, strategy भी यही discuss की गई कि कुछ ऐसा ढूंढें, कुछ ऐसा कस्टमर पे फोकस करे, पर्सनलाइज सर्विसेज को फोकस करे जो पहले मार्केट में कोई ना कर रहा और आप उसको एज अ निश मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं। Obviously, niche market have some different types of sort of risks contains, because the small sometimes it is an innovative product and it is compulsory for a business to charge comparatively high prices for these products. Limited sales potential है आपके पास, लिमिटेड आपके पास सेल्स पोटेंशियल है और स्पेशलाइजेशन है। लिमिटेड मार्केट हो सकता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करे, और अगर आपने कोई ऐसी इनोवेटिव फीचर बनाया है जो मार्केट में दैट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द कंज्यूमर, नॉट लाइक्ड बाय द कंज्यूमर, तो ये भी एक इशू हो सकता है उसमें। प्रोडक्ट अगर मार्केट में फेल हो जाती है, नॉट लाइक बाय द कंज्यूमर, उसको कंज्यूमर एक्सेप्ट नहीं करता, आपकी निश मार्केट जो है वो कोलैप्स कर सकती है। आपकी निश मार्केट अगर कोलैप्स करती है तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, वो आपकी वेस्ट हो जाती है, दैट इज टोटली वेस्टेड। आप देखते हैं मार्केट में कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट आई, सैमसंग ने एक नोट 7 इंट्रोड्यूस करवाया, वो एक निश के तौर पे मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ कि जी एक नई प्रोडक्ट है मार्केट में, उसका प्रोसेसर, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी परफॉर्मेंस, लेकिन कुछ मार्केट सारी की सारी मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो उसकी नोट 7 सैमसंग लॉन्च करने पे उसकी कोलैप्स कर। So the last concept of this chapter is the concept of market segmentation. What is meant by segment? First of all, हम देखते हैं कि segment का मतलब क्या है। Market segmentation and the market segment.
A segment, market segment, is a subgroup of a whole market. And in this group, the consumers have similar needs and wants. The consumers have similar characteristics. Every market segmentation segment is a unique, and marketing managers decide on various criteria to create these target groups. Offering different products to the different people is called market segment or market segmentation. अब हम बात करेंगे the product differentiation की. Now we are going to offer different products to different people according to their needs. थोड़ी देर पहले ही मैंने टूथपेस्ट कोलगेट को मैस मार्केटिंग में रखा था, बट नाउ अब मैं उसी टूथपेस्ट को सेगमेंटेशन में रखने लगा क्योंकि वो पुरानी एग्जांपल थी. आज के ज़माने में जो सेगमेंटेशन है, डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट टूथपेस्ट जो हैं वो डिफरेंट लोगों को ऑफर की जाती हैं, जिसमें डेफिनेशन पढ़ लें, फिर मैं सेंसोडाइन की एग्जांपल जो है वो ऐड करूँगा. So the process of market segmentation, where the market has been divided into different parts, different types of consumers, and these consumers have similar needs and wants. Identifying these groups of people and offering different products to different types of consumer is called market segmentation. Market segmentation means different consumers को different product offer की जाती है. Sensodyne की example सबसे इसमें ऐड की जाती है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के लोगों के लिए जिनको सेंसिटिविटी का इशू है, जिनको पेन का इशू है, जिनको गम्स का इशू है, डिफरेंट फ्लेवर्स जो हैं वो उसके ऑफर किए जाते हैं. इसी तरह एक और एग्जांपल सेगमेंटेशन को समझने के लिए, सुजुकी जो कि एक कार मैन्युफैक्चरर है, डिफरेंट इनकम क्लास को डिफरेंट सेगमेंट्स बनाता है अकॉर्डिंग टू इनकम क्लास. जैसे उसकी सुजुकी मेहरान है, एक इनकम क्लास को बिलोंग करती है, उसके बाद वैगनर है, उसके बाद कल्टस है, फिर उसकी हाई प्राइस कार्स जैसे सुजुकी सियाज है, फिर उसकी एलीट कार्स जो कि टॉप सेगमेंट एलीट इनकम को फोकस करता है, जिसका नाम सुजुकी वितारा. तो मुख्तलिफ सुजुकी एक ऐसा ब्रांड है जो हर इनकम सेगमेंट को फोकस करता है. तो बहुत सारी एग्जांपल इसमें सेगमेंटेशन में दी जाती है. इवन कोका कोला भी अब सेगमेंटेशन में आ चुका है. एंड द कोका कोला offering the diet coke for those people who actually conscious about their health or having some diabetic issues, उनके लिए डाइट कोक का एक सेगमेंट जो है, जबकि वो कोका कोला एक मैस आइटम थी, अब वो डाइट आइटम के सेगमेंटेड आइटम भी आ रही है. Segmentation, the largest benefit of segmentation, there is no need to conduct a market research from the whole population. सबसे बात करने की, सबसे मिलने की आपको ज़रूरत नहीं है. You don't need to ask from the whole population. You just need to ask from the target population. अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो एक ख़ास एज ग्रुप से बिलोंग करती है, जैसे आप एक ऐसी साइकिल बनाते हैं जो 10 से 15 साल के बच्चे यूज़ करते हैं, तो सिर्फ आपको उस टारगेट ऑडियंस पे फोकस करना है. अगर आप मोटर बाइक बनाते हैं, देन यू ओनली फोकस टू द मेल कम्युनिटी इन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे फीमेल कम्युनिटी मोटर बाइक्स वगैरह यूज़ नहीं करती. सो आपकी टारगेट ऑडियंस जो आपका सेगमेंट है वो सिर्फ मेल कम्युनिटी, और वो मेल कम्युनिटी जो उस मोटर बाइक को अफोर्ड भी कर सकता है. सो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्रिसाइजिंग, प्रिसाइज मार्केट. द बिजनेस can, with the help of market segmentation, business can define the market precisely and produce products according to the particular demand of the target market. जो यंगस्टर्स हैं वो ज़रा स्पोर्टी लुक की बाइक्स चलाना पसंद करते हैं, तो स्पोर्ट्स बाइक्स बनाई जाती हैं. जो मेच्योर या जो ओल्ड एज के लोग हैं वो ज़रा लाइट वेट, एक फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स यूज़ करना चाहते हैं, तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किए. सो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड टू डिफरेंट पीपल. दिस इज ट्रूली कॉल्ड द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. मार्केटिंग strategies. Now this is the time to offer the customization. आप किसी टारगेट ऑडियंस से रिसर्च करके उसकी
डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट को डिज़ाइन, जबकि मैथ्स में आपने ये देखा था कि मैथ्स में एक ही स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस एंड ऑफर टू द होल पॉपुलेशन, while in the segmentation, the market research is conducted, the people, the consumer reviews, feedbacks are collected, and then according to these reviews, products are produced. The pure approach of market orientation. This avoid wasting resources. आप उन लोगों से मत मिलें, उन लोगों से मत सवाल पूछें जो कि आपकी ऑडियंस नहीं है, उन लोगों के मुताबिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस ना करें जो आपकी ऑडियंस नहीं है. This reduce the wastages of resources. Ways to segment, a very easy concept. तीन मेन मेजर मेथड इसमें पढ़ाए जाते हैं और तीन इसमें माइनर यूज़ किए जाते हैं. जो मेजर मेथड्स हैं उसमें सबसे पहले इनकम ग्रुप को डिस्कस किया जाता है. इनकम ग्रुप्स, द सेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू इनकम ग्रुप. मैंने जैसे पहले आपको सुजुकी की एग्जांपल दी थी. सुजुकी जो सेगमेंट करता है वो इनकम क्लास के हवाले से करता है. कैन बी डिफाइंड एज ग्रुपिंग पीपल जॉब अकॉर्डिंग टू हाउ मच दे कैन पे फॉर. मैं इसको आसान कर देता हूँ, इनकम क्लासेस को डिफाइन कर देता हूँ. लोअर इनकम, मिडिल इनकम, हायर इनकम, एलीट इनकम, इस तरीके से 6 ग्रुप ऑफ पीपल जो है बना सकता हूँ. लोअर इनकम में भी 2 ग्रुप्स हैं, वेरी लोअर, अपर लोअर. इस तरह मिडिल इनकम में 2 ग्रुप्स हैं और हायर इनकम और एलीट इनकम, ये तकरीबन 6 सोशल ग्रुप्स सोशियोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं. उसके बाद बाय एज वुड बी अ सेकंड मेथड इन विच द प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स. कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो एडल्ट्स को या टीनेजर्स को, जो टॉयज़ हैं वो बेबीज़ को ऑफ़र किए जाते हैं. अगर आप एंटरटेनमेंट शॉप की बात करते हैं तो वो बेबीज़ के लिए होगी, वो शॉप का जो टारगेट ऑडियंस होगी वो बेबीज़ होगी. जैसे ही बेबी 8 या 9 इयर्स का होता है, अव्वल तो उस वो टॉयज़ के सेगमेंट से आउट हो जाता है, या फिर उसके लिए उस अब ऐसे टॉयज़ भी आ गए हैं जो थोड़े से बड़ी एज के बच्चों के लिए, 10 से 11 साल के बच्चों के लिए जो टॉयज़ हैं वो भी डिज़ाइन किए जाते हैं. फिर प्ले स्टेशन आ जाता है, फिर मोटर बाइक्स आ जाती हैं जो कि 18 ईयर्स से अबव की सेगमेंट किया जाता है. फिर कार्स आ जाती है, फिर में सेगमेंटेड कार्स हैं. फिर ओल्ड एज लोगों के लिए सेगमेंट है. फिर व्हील चेयर्स हैं. फिर एंटी एजिंग क्रीम्स है जो कि ओल्ड एज, तो एज ग्रुप्स को फोकस किया जाता है. ये सेकेंड मेन मेथड है. क्लोथिंग को अकॉर्डिंग टू एज सेगमेंट किया जाता है. बच्चों के कपड़े, टीनेजर्स अलग तरह के जीन्स पहनते हैं. मैच्योर ड्रेस, जो लोग जॉब करते हैं उनको ड्रेस टाइप क्लोथिंग जो है वो रिक्वायर्ड है. बाय जेंडर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड अकॉर्डिंग टू द जेंडर कैटेगरी. लाइक मेल्स के लिए प्रोडक्ट अलग होंगी और फीमेल्स के लिए प्रोडक्ट जो हैं वो अलग बनाई जाएंगी. उसके बाद जो बाकी डिफरेंट रीजन्स, मैकडोनल्ड की ऑफर एग्जांपल दी जाएगी रीजन के लिए. इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ कंट्री पीपल माइट बाय डिफरेंट. मैकडोनल्ड जो है वो रीजन के अकॉर्डिंग, पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के कल्चर और इस्लामिक वैल्यू, रिलीजियस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को सेल करेगा. किसी भी दूसरे रीजन में जाके उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो उस रीजन के मुताबिक क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है. इसके अलावा बाय द यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, यूज़ जैसे कि आप कह सकते हैं कि आप कमर्शियल यूज़ के लिए प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं. कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनाई जाती है. जो ट्रक्स और कैरी डब्बाज हैं, ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, इनको फैक्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है. और कुछ ऐसी जो हाउस होल्ड गुड्स हैं जैसे कि टोयोटा करोला है या होंडा सिविक है, सिटी है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिज़ाइन की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द होम यूज़. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ अ प्रोडक्ट को आप यूज़ कैसे करते हैं, किस कंडीशन में यूज़ करते हैं. बाय द लाइफस्टाइल, मैरिड का लाइफस्टाइल डिफरेंट है. मैरिड विद 2 चिल्ड्रन लाइफस्टाइल, जो मैरिड नहीं है
जो बैचलर्स हैं उनका लाइफस्टाइल जो है वो डिफरेंट होगा। सो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड टू डिफरेंट लाइफस्टाइल। इसमें लाइफस्टाइल का ये भी आ सकता है कि जो लोग टाउन्स में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, लार्ज सिटीज़ में रहते हैं, जो लोग विलेजेस में रहते हैं, उनके लाइफस्टाइल का। तो अगर आप इंटरनेट ऑफर कर रहे हैं तो शहर में इंटरनेट की स्पीड की रिक्वायरमेंट और गांव में इंटरनेट की स्पीड, तो लाइफस्टाइल जो है वो डिफर कर सकता है। The last heading, deciding the best place to sell and advertise. It is the marketing department responsibility to find out the best place for selling and advertisement. Selling means कोई location ऐसी हो जहाँ पे वो best वो product suit करे according to the market